Hello students, this is Dr. Balpreet Kaur, Associate Professor in DIPS IMT. Today I am going to discuss the chapter supply under GST. So the goods and service tax is a tax on supply of goods or services or both, except taxes on supply of alcohol liquor for human consumption. कि जो goods and service tax है वो कब apply किया जाता है, कब impose किया जाता है, when the goods and services are supplied, right? So GST is a tax on supply. Supply means supply of goods or services. But in the older system, excise duty was a tax on manufacturing of goods, service tax was tax on provision of service, and VAT was a tax on sale of goods. तो पहले हमारे पास एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की जाती थी, सर्विस टैक्स लगता था, वैट लगता था, लेकिन अब उन्होंने तीनों को हटा के क्या बना दिया, जीएसटी. अब जीएसटी एक सिंगल टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पे लगाया जाता है. The next is taxable event under GST. So under GST, taxable event is supply, and all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal, made or agreed to be made for consideration by a person in the course or furtherance of business. कि अगर आप किसी भी टाइप की सप्लाई करते हो, मतलब सप्लाई इन टर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है. तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है सेल. सेल मींस द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर कैश इन फॉर्म ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन. एंड ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज एंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स. बार्टर, बार्टर सिस्टम क्या है? इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, जो हमारा पुराना सिस्टम चलता था. Exchange, if the new, for example, if the new AC is purchased in exchange for old AC, कि अगर आपने old AC देके new AC purchase कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? Exchange policy. And the license, license means the permission to use something. For example, if a person is granted a license to use equipments in consideration for some compensation, and then such permission or license is an act of supply. तो उसको भी हम सप्लाई के अंडर ही कवर किया करेंगे. लीज. नेक्स्ट इज रेंटल. प्रोवाइडिंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रेंट इज एन एक्ट ऑफ सप्लाई. लाइक अगर आप बिल्डिंग किसी को रेंट पे देते हो, वो भी हमारा एक एक्ट ऑफ सप्लाई ही माना जाता है. लीज, द एक्ट ऑफ लेटिंग आउट ए प्रॉपर्टी फॉर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम इज लीज. फॉर एग्जाम्पल, if the land is given for 1 year lease, it is called as act of supply. The next is disposal. Disposal is an act of throwing away a property at a value much lower than its acquisition cost. Suppose कि आपने कोई एसेट परचेज किया था, उसकी कॉस्ट थी 2 lakhs, राइट? तो आपने उसको बहुत ही कम प्राइस में अब डिस्पोज ऑफ किया है, उसको सेल किया है. जो भी आपको स्क्रैप में सेल करके पैसा मिल रहा है, तो उसको हम क्या मानेंगे? एक्ट ऑफ सप्लाई. ठीक है, वो भी आपका, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगी. So this is this is about the all the forms of supply of goods or services. The next is made or agreed to be made for consideration by a person in the course or furtherance of business. So what is the meaning of agreed to be made? Agreed, right? Consideration, course or furtherance of business. So let's discuss all these terms. The supply made or agreed to be made both are taxable. कि अगर आपने सप्लाई एक्चुअल में कर दी है, या आपने जैसे कोई प्रॉमिस किया कि हम फ्यूचर में आपको सप्लाई करेंगे, and not only making of supply but also only agreeing to make supply is an act of supply. तो हम दोनों को किसके अंडर कवर करेंगे? Under the act of supply. For example, an architect agrees to provide consultancy for house construction for rupees 1,50,000 and receives 10,000 as consideration for agreeing to provide consultancy. कि दूसरी पार्टी ने आर्किटेक्ट को 10,000 एडवांस में दी थी, कि उसने एक एग्रीमेंट कर लिया था कि मैं आपको सर्विस, अपनी कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करूंगा. In this case, the advance of rupees 10,000 is chargeable to tax.
right? So there is one important point that all the taxpayers are exempted from payment of tax on advance against goods. ये एक नोटिफिकेशन आई थी कि अगर आपको गुड्स, जैसे अगर आपने गुड्स का एग्रीमेंट कर दिया कि हम आपको सप्लाई करेंगे इन फ्यूचर, उसके बदले में अगर एडवांस मिलता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एडवांस अगेंस्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिमेन टैक्सेबल. Next is consideration. Consideration means any payment made or to be made whether in money or otherwise. कि आप अगर मनी फॉर्म में पेमेंट कर रहे हो या अदर फॉर्म में लाइक इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, तो वो भी आपकी कंसिडरेशन में की काउंट की जाएगी. And in respect of, in response to, or for the inducement of and the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person. So, if the payment is made by some person other than the recipient of good, still it forms part of consideration, right? या अगर जैसे कि आपने गुड सेल की है मिस्टर एक्स को, लेकिन मिस्टर एक्स पेमेंट करने की बजाय आपको वो पेमेंट नहीं कर रहा है, उसकी जगह पे मिस्टर वाई पेमेंट कर रहा है. मिस्टर वाई क्यों कर रहा है? क्योंकि वाई ने एक्स को पेमेंट करनी थी पहले, तो वो एक्स कहता है कि आप मेरे को पेमेंट करने की बजाय तो डायरेक्ट जिससे मैंने गुड्स परचेज की हैं आप उनको पेमेंट कर दो, तो मैं आपका डेट है वो खत्म कर दूंगा. And but shall not include any subsidy given by the central government or state government. And subsidy given by a central government or state government means कि उसको हमने कंसिडरेशन में काउंट नहीं करना. फॉर एग्जांपल, इफ ए फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड एट सब्सिडाइज्ड प्राइस टू द फार्मर्स, द बैलेंस अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. कि जैसे अगर फार्मर्स को जो उन्होंने फर्टिलाइजर परचेज करने थे, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो जो सब्सिडी की अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, राइट? देन for example, any amount of deposit given in respect of supply does not form part of consideration. एक और पॉइंट क्या है कि अगर कोई पर्सन कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाता है तो उसको हमने कंसिडरेशन काउंट नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट रिसीव्ड एज डिपॉजिट इन पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज. कि अगर आपने कोई टेलीकॉम सर्विस लेनी है तो उसके बदले में आपने पहले उनको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई है, तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई है वो एक कंसिडरेशन नहीं है जो आप सर्विस ले रहे हो. जब आपने टेलीकॉम सर्विस ली है, यूज की है, तो उसके ऊपर जो आपको, जैसे आपका रेंट आएगा, जो भी आपका बिल आएगा, जो बिल है दैट इज द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन. लेकिन जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई है वो कंसिडरेशन नहीं है, तो जब आपने सर्विस अवेल की उसके बदले में आपको बिल पे करना पड़ता है, राइट? The next is the monetary value of any act or forbearance. कि अगर आप कोई भी जैसे एक्ट है उसकी मॉनेटरी वैल्यू पे कर रहे हो, जहाँ फिर क्या है, फोरबिडेंस मीन्स अगर आप अपना जो राइट है वो वेव ऑफ कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द कंसिडरेशन. अब कैसे देखो, if a person withdraw its claim on use of his brand, कि कोई पर्सन का खुद का ब्रांड था, वो कहता है कि मैं अपना ब्रांड छोड़ रहा हूँ, तेरे को दे रहा हूँ, अगर तू मेरा ब्रांड नेम यूज करता है तो मैं तेरे ऊपर कोई केस नहीं करूंगा. एंड अलाउज अनदर पर्सन टू यूज हिज ब्रांड नेम, अदरवाइज तो ब्रांड नेम यूज करना अलाउड नहीं होता, लेकिन उस पर्सन ने क्या किया, अपना जो राइट है वो वेव ऑफ कर दिया और अपना राइट किसी और पर्सन को दे दिया. सो द फॉरबियरेंस टू इन्फोर्स दिस क्लेम, तो उसने अपना राइट वेव ऑफ किया, इज ऑल्सो द कंसिडरेशन, तो वो भी एक कंसिडरेशन ही मानी जाएगी. नेक्स्ट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. मीन्स कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई हो रही है और वो हो रही है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो हमारा सप्लाई के अंडर काउंट होएगा, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा. द फर्स्ट पॉइंट इज परमानेंटली ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स. अगर कोई बिजनेस एसेट है वो परमानेंटली ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है तो उसको हम किसके अंडर कवर करेंगे, उसको हम सप्लाई के अंडर कवर करेंगे. लेकिन अगर आप अपना कोई नॉन बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको हमने सप्लाई के अंडर कवर नहीं करना. हम एक एग्जांपल करते हैं. इफ ए पर्सनल कार इज गिफ्टेड टू सम एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस, कि आपने कौन सा अपना एसेट ट्रांसफर किया, नॉन बिजनेस,
मीन्स पर्सनल कार आपकी खुद की थी, ठीक है, अगर आपने वो ट्रांसफर की है सो इट इज नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर आपकी बिजनेस की कार होती और वो आप अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर देते, देन उसके ऊपर चाहे जो आपका एम्प्लॉय आपको कंसिडरेशन नहीं पे कर रहा है, लेकिन वो क्या होती, टैक्सेबल होती, उसको हम सप्लाई ही ट्रीट करते हैं। द नेक्स्ट इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, कि अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो, कुछ बाहर से परचेज कर रहे हो, लेकिन आपका परचेज करने का पर्पस क्या है कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए कोई गुड्स परचेज कर रहे हो फॉरेन से, उसको भी हमने, चाहे अपने उसके बदले में कोई कंसिडरेशन पे नहीं की, लेकिन उसको भी जो सप्लाई है वो ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू रिलेटेड पर्संस, कि अगर आप कुछ रिलेटेड पर्संस को कुछ अपने जैसे डिस्टिंक्ट है या कोई रिलेटेड पर्सन, अगर हम उनको इवन विदाउट कंसिडरेशन कुछ सप्लाई कर रहे हो, तो वो भी आपके बिजनेस के अंडर ही कवर होएगी और उसको उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एजेंट ट्रांसफर, कि अगर जैसे आपने प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप तो पढ़ा ही हुआ है, कि अगर प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है तो उसके बिहाफ पे रोल कौन करता है, उसका एजेंट रोल प्ले करता है। तो अगर एजेंट को गुड्स ट्रांसफर की जाती हैं तो वो भी हमने एज ए सप्लायर ट्रीट करना है, और बिजनेस पर्पज के लिए और फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस अगर हम इसको लेके चल रहे हैं, देन उस केस में क्या है, इसको सप्लाई मानेंगे और इसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा, राइट। So this is all about the supply. Hope the lecture is clear to all the students, and thank you.